So this is our fourth lecture for your direct taxation SEM 5. Earlier we have discussed about the first chapter, the syllabus and all. In the earlier lecture, the last lecture, we have discussed about some of the definitions in the Income Tax Act, right? So in today's lecture, we will be moving ahead with some more concepts, some more important topics relating to the Income Tax Act. So what is this concept? Now we have learned about some terminologies, we have learned about the Act, we have learned about the introduction to the Act. So what's next part? Next part is about charging of the Act, right? That is charging, means you have to charge the Income Tax Act to the income. So how we would charge the Act? So charge of Income Tax Act. So charge of Income Tax Act is under section 4. So section 4 simply states that what is charge of income. So how you will charge an income, or how you will enforce an act or enforce a particular provision on the income, that is about the section 4. So simply states that first, income tax shall be charged. Income tax shall be charged at the rates laid down by the Finance Act. So income tax should be charged. I mean, income tax act should be charged. Why the state? What is the concept on it? Income tax will be charged on basic thing you have to understand is income tax is always charged on the annual income. So this income tax can also be called as an annual tax. So income tax is also called as a annual tax. Annual tax का भी तुम लोग उसको बोल सकते हैं. At the rate or rates, that is rate or rates laid down by the Finance Act. Now the provision is why there is a Finance Act involved in it, because we are learning about Income Tax Act. Now there is a involvement of a Finance Act in this section. Why that is? So Income Tax Act is basically a permanent act. That is that it will be rigid. It will not be moving. It will not be having any kind of changes very frequently. But on towards that, Income Tax Act always have the provision what is to be done and how is to be done. But Income Tax Act does not have any kind of rates involved in it. Income Tax Act does not define or does not determine at what rate the income should be charged to tax. So that is not defined in Income Tax Act. So that will be clearly defined in the Finance Act. Finance Act is the temporary, or we can say the changeable, the flexible act. Finance Act, generally we understand it by the budget. Income Tax Act is once made, it will never be changed. It cannot be changed and it will never be changed. Or it can be just totally, the income tax should completely amended. But we cannot amend it every year. So on the contrary, we have to change some of the provisions, like on the need of the economy. As per the need of the economy, we have to raise your tax rates, or sometimes we have to decrease the tax rate. But this changing of tax cannot be done by changing the Income Tax Act. For that purpose, we need to change the Finance Act. The Finance Act is the flexible act that we know as a budget. Generally, people know that the Finance Act as a budget that is made every year, that is changed every year as per the need of the economy. So it is charged as per the Finance Act. So rates of Income Tax Act is not in the Income Tax Act. It is under the Finance Act. So at the rate laid down by the Finance Act for the assessment year. So as I said, Finance Act is implemented or amended or changed or established every year. So which year you have to implement? So you have to implement it according to the current assessment year. As I said before in the previous lectures, I said that when you purchase a textbook, even a textbook, when you have purchasing it, you have to purchase it as per the current assessment year. The same way, Finance Act, the provisions of the Finance Act will be applied as per the assessment year. So you have to apply the amendments or provisions as per the current assessment year. If you're applying it on the basis of the previous assessment year, then it will be somewhat, it will be different. It will be contradictory. Yeah. So basically, जब भी आप assessment year का application करते हो, जब भी income tax का application करते हो, income tax का provisions का application करते हो, you should be very much clear कि आपका assessment year क्या है, और उस assessment year के हिसाब से जो amendment हुआ है, वो amendment को आपको apply करना है. Like for example, अगर साल अभी अपना current assessment year is what? 1st of April 2020. So 2020, which will be ending at 31st of March 2021. That was the assessment year, as I taught in the definition.
सो असेसमेंट ईयर 2020, ये साल के शुरुआत तक जो भी प्रोविजंस अप्लाई किया गया है, एनी अमेंडमेंट्स मेड टिल 1st of April 2020 विल बी अप्लाइड। सो 1st of April 2020 से जो भी रूल्स अप्लाई किया गया है, जो भी चेंजेस आया है, वो सब चेंजेस इसमें अप्लाई किया जाना चाहिए। ये साल का इनकम का या फिर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन में अप्लाई करना जरूरी है। सो दैट इज फॉर द असेसमेंट ईयर। Next is in accordance with and subject to the provisions of this act. In accordance with and subject to provisions of this act means what? Whenever you are applying the assessment year, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे भी आप assessment year apply करते हैं, क्यों assessment year identify करना जरूरी है? क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट जब बदला, तो उस ईयर का फाइनेंस एक्ट में जो भी बदलाव आया था, वॉट एवर चेंजेस इट हैज बीन मेड, वो सब चेंजेस आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। So any changes made in the assessment year in the word of the finance act, so in that case that entire thing should be applied in the current assessment year while calculating your income and your income tax. So that is in accordance with and subject to provisions of the act. Next is in respect of the total income. Now the total income, again as I said before, total income. Total income means the entire income that you have earned or collected or that you have in the particular 12 month period. That is from the 1st of April 2000 of a year to 31st of March 2000 of a year. So that compilation of 12 months, वो पूरे साल का इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इनकम बोलेंगे। सो इन रेस्पेक्ट टू द टोटल इनकम, वो पूरे इनकम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या फिर वो इनकम के ऊपर ये प्रोविजन सारे आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर? जैसे मैंने बोला टोटल इनकम ऑफ 12 मंथ, ये कौन सा 12 मंथ होना चाहिए? तुम्हारे असेसमेंट ईयर के पहले का प्रीवियस ईयर, तुम्हारे असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का साल, दैट इज योर प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड इन द डेफिनेशन। So previous year, the total income should be of your previous year. So now current situation के हिसाब से मैं बात करेगा, what is your previous year? Previous year is starting from 1st of April 2019, which will be ending at 31st of March 2020. ये जो 12 महीने में आपने जितना भी इनकम कमाया रहेगा, उस इनकम के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं? इस असेसमेंट ईयर में इनकम के ऊपर टैक्स का प्रोविजन या टैक्स चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? सो 1st of April 2019 से लेके 31st of March 2020 तक जितना भी इनकम कमाया है, उसी इनकम के ऊपर हम लोग प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं। इस फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जो भी अमेंडमेंट है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ एवरी पर्सन। नाउ पर्सन एज अगेन डिफाइंड और डेफिनेशन में पढ़ाया गया था, पर्सन मतलब क्या? सो एनी काइंड ऑफ पर्सन का जितना भी इनकम, so कोई भी पर्सन ले दो, इट whether it can be an individual, HUF, firm, cooperative society, a body of individual, association of person, artificial jurisdictional person, local authority, anyone, any kind of person, कोई भी पर्सन लेने दो, वो सारे पर्सन का इनकम पे सेम रूल्स अप्लाई किया जाता है। मीन्स यही प्रोविजंस को आपको इसी रूल्स के थ्रू अप्लाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल्स को जो रूल अप्लाइड है वही कॉर्पोरेट को रूल अप्लाइड है, ऐसा नहीं। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंस एक्ट में रूल अप्लाई किया गया, जैसा इंडिविजुअल्स को बोला गया, क्या बोला इंडिविजुअल्स को? कि इंडिविजुअल्स को बोला गया है इस साल का इनकम, इस प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स इस असेसमेंट ईयर में जो भी प्रोविजन में चेंजेस है उसके हिसाब से अप्लाई होगा। सेम वे कॉर्पोरेट्स को भी यही बोला जाएगा कि तुमने ये प्रीवियस ईयर में जितना भी इनकम कमाया है उसके ऊपर ये साल का टैक्स आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। सो दैट इज ऑफ एवरी पर्सन। सो दिस इज द प्रोविजंस। So what you have to understand by section 4 is simply that income tax should be charged at the rate or rates laid down by the Finance Act for the assessment year in accordance with and subject to the provisions of this act, which Act? Finance Act, in respect to the total income of the previous year of every person. That is your section 4. So section 4 अगर मैं in simple terms में समझाऊंगा, so it is very simple कि अगर एक पर्सन है, देयर इज अ पर्सन, वो पर्सन कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, कोई भी पर्सन का कैटेगरी का होने दो, उसका प्रीवियस ईयर उठाओ, कोई भी कैटेगरी का पर्सन रहने दो, उसका प्रीवियस ईयर उठाओ, उस प्रीवियस ईयर में उसने जितना भी इनकम कमाया उसको निकालो, वो पूरे इनकम के ऊपर आपको क्या अप्लाई करना है? इनकम टैक्स का प्रोविजन अप्लाई करना है। बट इनकम टैक्स का प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा, यू शुड नो रेट जब अप्लाई होता है वो रेट कौन सा एक्ट के हिसाब से होगा? फाइनेंस एक्ट के हिसाब से होगा। कौन सा हिसाब से होगा? फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हर साल बदलता है, तो कौन सा अप्लाई करना है?
फाइनेंस एक्ट तुम्हारे जो रिलेशन में आने वाले असेसमेंट ईयर में, किसके साथ आएगा, तुम्हारे असेसमेंट ईयर में जो भी फाइनेंस एक्ट बना है वो तुमको क्या करना है, अप्लाई करना है. दैट इज योर सेक्शन 4 एज अ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. सो इन अगर मैं थोड़ा एक एक्सप्रेशन में चेंज करूं, वर्ड्स का टर्मिनोलॉजी में अगर बताऊं, चेंज करके अगर मैं ग्राफिकली थोड़ा चार्ट में अगर मैं बात करने जाएगा, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम, क्या है तुम्हारा इनकम. नेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस हुज इनकम, कौन है. तो ऑब्वियसली जैसे सी इनकम को तो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि क्या क्या चीजों को हम लोग इनकम करके बोला जाता है. हुज इनकम मींस दी एसएससी, एसएससी का इनकम होना चाहिए. नेक्स्ट इनकम इज ऑफ विच पीरियड, कौन सा पीरियड का इनकम है वो जानना जरूरी है. ऑब्वियसली हम लोग उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे. क्या, सो प्रीवियस ईयर का इनकम है, तो प्रीवियस ईयर का इनकम के हिसाब से हम लोग क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. तो इनकम ऑफ विच पीरियड, प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मतलब तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2019-20. आगे, हाउ इनकम इज कंप्यूटेड, इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा. ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, करंट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से या फिर इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्यूट करेंगे. सो ये हो गया इनकम के ऊपर. इनकम के बेसिस पे ये सब चीज है. तो ये सब कंपाइल होगा किसका बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे. तो इनकम के बेसिस पे क्या क्या जानना है, इनकम क्या है, किसका इनकम है, कौन से पीरियड का इनकम है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. इनकम मतलब वो प्रॉफिट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, एनीथिंग. किस, हुज इनकम, एसएससी का इनकम, कभी का इनकम, प्रीवियस ईयर का इनकम, और कैसे कैलकुलेट किया, एज पर द फाइनेंस एक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन किया है. तो ये सब हुआ इनकम के बारे में. जैसे इनकम के बारे में क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस with then it should be computed. So when it should be computed, it should be computed in the assessment year. Then it should be computed in the assessment year. तो असेसमेंट ईयर में कंप्यूट करेंगे. असेसमेंट ईयर में कंप्यूट क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे. क्या कंप्यूट करना है, टैक्स कंप्यूट करना. सो वी शुड कंप्यूट द टैक्सेशन. तो जब टैक्स कैलकुलेट करने की बारी है, वी हैव टू क्वेश्चंस अराउंड अस. फर्स्ट इज एट व्हाट रेट टैक्स जब कैलकुलेशन किया जाएगा, कैसे, क्या, कौन से रेट पे कैलकुलेशन करना है. तो रेट कौन सा कैलकुलेशन होगा, जो हमको फाइनेंस एक्ट बताएगा. अमेंडमेंट में जो फाइनेंस एक्ट आया है, जो करंट असेसमेंट ईयर में जो फाइनेंस एक्ट आया है, उसमें जो रेट बोला गया है वो रेट हम लोग क्या करना है, अप्लाई करना है. टेबल बाय होम, टेबल बाय होम कौन रहेगा, ऑब्वियसली हमारा एसएससी. सो ये एक चार्ट फॉर्म में है कि तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनकम से लेके टैक्स तक कैसे उसका मूवमेंट होता है. तो किस इनकम, क्या, किसका इनकम, कैसे, कौन से ईयर का इनकम, कैसे कैलकुलेट किया, फिर वहां से कब कैलकुलेट करना है, फिर क्या कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद वो कौन से रेट में कैलकुलेट होगा और वो कैलकुलेट होने के बाद भरेगा. सो दैट इज द एंटायर चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. क्लियर. सो दिस इज द सेक्शन 4 कंप्लीटली कि इनकम टैक्स को चार्ज कैसे करना है. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स. नाउ दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर ही तुम लोग को एंटायर प्रैक्टिकल डिपेंड करता है. अभी यहाँ पे मैं आपको जो डिफाइन करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको थियोरेटिकल एस्पेक्ट में बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है. सो व्हाट आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, द कैलकुलेशंस पार्ट, द प्रैक्टिकल वाला पार्ट. क्लियर. सो व्हाट आर देयर. फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज डिटरमाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम. टोटल इनकम का रीच, पहुंच क्या है, मतलब हाउ फार इट इज, how much it can be applied, to whom all it can be applied. So entire ये स्कोप को तुम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. So first step is to identify or determine the scope of total income. तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में तीन चीजें आता है. फर्स्ट इज रेसिडेंस, सेकंड इज ईयर, थर्ड इज प्लेस. सो ऐसा तीन चीजें आता है किसके अंदर, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. सो स्कोप ऑफ टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ रेसिडेंस, then next becomes your year and then next becomes your place. So residence, year और place इज जानना जरूरी है. इसमें से ईयर वाला पार्ट हमने क्लियर कर चुका है कि ईयर इज योर प्रीवियस ईयर में कमाया हुआ है. कैलकुलेशन कब होगा, असेसमेंट ईयर के प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे. सो ईयर डिफाइंड है. प्लेस भी क्लियरली डिफाइन किया है. मैंने बोला गया था कि प्लेस मतलब व्हाट, प्लेस इज योर इंडिया, एनी इनकम अराइजिंग बिकॉज ऑफ इंडिया, विद इंडिया, विच इज द स्कोप, विच इज द रीच ऑफ इंडिया, अप्लाई टुवर्ड्स इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, ऐसे कुछ भी बोलो. सो प्लेस इज इंडिया, बेसिकली प्लेस इज इंडिया. इंडिया के साथ रिलेशन होने वाला कोई भी चीज के साथ आपको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स कैलकुलेशन का रहना पड़ता है. सो रिलेशन क्या रहेगा, प्लेस इज लाइक इंडिया. हाँ, जरूरी नहीं है, इट डजंट मीन कि आपको इंडिया में कमाना है. इट डजंट मीन कि प्लेस अगर इंडिया है तो डजंट मीन कि इंडिया में कमाना जरूरी. यू हैव टू अर्न इन इंडिया, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम.
सो क्वेश्चन, सो कंफ्यूजन नहीं रखना। कमाया मैं बाहर हूँ, मैं कमाया बाहर है, लेकिन मुझे पैसा जो मिल रहा है वो इंडिया में रहेगा तो भी चलेगा। मैं पैसा जो मुझे मिल रहा है वो बाहर है, पैसा बाहर, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैं यूएस में यूएस से कमाता हूँ, लेकिन उसको पैसा जो मिलता है मुझे यूएस में मिलता है, लेकिन मैं इंडियन हूँ वो भी चलेगा। इंडिया का प्रोविजन आता है तो प्लेस इज इंडिया। सो प्लेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वो आपको आगे का चैप्टर में बहुत क्लियरली समझाया जाएगा कि व्हाट इज, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्लेस। नेक्स्ट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सो रेसिडेंस। रेसिडेंस के बारे में जब मैं बात करूंगा तो रेसिडेंस के बारे में एक बार क्लियर कर लेना कि रेसिडेंस में आपको पूरा एक टॉपिक है समझने को, और उसके बेसिस में क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रेसिडेंस, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब जानना जरूरी है। सो स्कोप ऑफ इनकम में ये तीन चीजें आपको समझना, वन इज योर रेसिडेंस, सेकंड इज योर ईयर एंड थर्ड इज योर प्लेस। ये तीन चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम। नाउ व्हाट इज एग्जेम्प्ट इनकम? एग्जेम्प्ट इनकम मतलब वो इनकम होता है जिस इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरने की जरूरत होता नहीं है, लाइक अ डिस्काउंटेड इनकम। मतलब इस इनकम के बेस, इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरने का जरूरत नहीं है या फिर कम भरना है। तो ऐसा कोई भी इनकम रहेगा तो उस इनकम को बोला जाएगा एग्जेम्प्ट इनकम। उसको आपको अपने टोटल इनकम से क्या कर देना है, निकाल देना है। सो यू हैव टू एक्सक्लूड एग्जेम्प्टेड इनकम। एनी एग्जेम्प्टेड इनकम इज कंपाइल्ड इन योर टोटल इनकम। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करें एग्रीकल्चर इनकम, अगर मुझे एग्रीकल्चर से कोई इनकम आता है, इट इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो मुझे वो इनकम को क्या कर देना है, सीधा सीधा निकाल देना है। दैट इज एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट इनकम। नेक्स्ट, क्लासिफाई इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। क्लासिफाई इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज दिस हेड्स ऑफ इनकम? अभी ये स्टेप अगर ऊपर लिया तो दैट विल बी मोर एमिकेबल, कि अगर आप हेड्स ऑफ इनकम पहले आइडेंटिफाई कर लें। सो हेड्स ऑफ इनकम क्या है? हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या आता है, लाइक फॉर एग्जांपल इट्स लाइक अ सोर्स ऑफ इनकम। हेड्स मींस सोर्स ऑफ इनकम, मुझे कौन कौन से जरिए से आता है, कौन कौन सा ऐसा रास्ते हैं, कौन कौन सा ऐसा जरिया है जिसके थ्रू मुझे क्या करता है, इनकम आता है। सो वो सब इनकम का हेड्स को मुझे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सो दैट हेड्स ऑफ इनकम, क्लासिफाई द इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि हेड्स के बेसिस में आपको क्या करना है, इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई करना है या फिर एग्जाम करना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड। उसके बाद जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हेड्स ऑफ इनकम है, तो उसको अरेंज करो। लाइक वी हैव सॉर्टेड इट, ये इनकम इसके अंदर है, ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में, ये इनकम दूसरे हेड्स ऑफ इनकम में, जैसे सॉर्ट किया, फिर वो एक पर्टिकुलर हेड में उठाओ, और वो हेड में उठाने के बाद उस हेड ऑफ इनकम के अंदर जितना भी कैलकुलेशन करना है, वो पूरा कैलकुलेशन उसी हेड ऑफ इनकम में आपको सॉल्व करना है। क्लियर? सो एक पार्ट उठाया, वो पार्ट के अंदर का कैलकुलेशन किया, दैट इज कंप्यूटिंग इनकम अंडर ईच हेड। सो मैंने समझ लो फॉर एग्जांपल 5 पार्ट में मैंने उसको सॉर्ट आउट किया। सो आई हैव अ स्कैटर्ड टोटल इनकम। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, उसको स्कैटर्ड को मैंने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, और वो हेड्स ऑफ इनकम को मैं ईच हेड ऑफ इनकम को निकाला, उसमें सबको मैंने क्या कर दिया, ईच सेट बाय सेट, ईच बाय ईच अरेंज करने लगा, और उसके अंदर कंप्यूट करना है। सो दैट इज कंप्यूटिंग इनकम अंडर ईच हेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग ग्रॉस टोटल इनकम एंड डिडक्टिंग, डिटरमाइनिंग द ग्रॉस टोटल इनकम। सो हाउ यू विल डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर क्या होता है ये ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम मतलब तुम्हारा टोटल इनकम में से जितना भी एग्जेम्प्ट इनकम था, टोटल इनकम में से जितना भी क्या था, एग्जेम्प्ट इनकम था, वो एग्जेम्प्ट इनकम को निकालने के बाद जो इनकम बचता है उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। शॉर्ट में जीटीआई करके भी बोला जाता है, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। सो जितना भी इनकम है, वॉट एवर इट इज योर टोटल इनकम, द सम टोटल ऑफ दैट इनकम डिडक्टिंग माइनस योर एग्जेम्प्ट इनकम इज नोन एज योर ग्रॉस टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप। And after that you have to deduct the claims for deductions. Now what is this claims for deductions? Like investment habit है, आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट हैबिट है, कहीं पे आपको पैसा रखने का हैबिट है, सेविंग्स करने का हैबिट है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट आपको बोला जाता है कि अगर आप इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हो या दिस सॉर्ट ऑफ सेविंग करते हो, तो इन दैट केस उनको उस एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, आउटफ्लो के ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। टैक्स आपको, टैक्सेबल इनकम आपका कम कर देंगे। सो आपके एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, सेविंग हैबिट्स के बेसिस पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपका आउटफ्लो है, उस आउटफ्लो की वजह से आपको क्या करने का जरूरत नहीं है, उस एंटायर इनकम के ऊपर टैक्स करने का जरूरत नहीं है। आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो दैट इज योर डिडक्शन। ये भी आपको एक क्लियरली आपको आगे पढ़ने को मिलेगा।
सो आपको क्रॉस टोटल इनकम निकालना है, उसमें से क्या माइनस करना है आपको, डिडक्शन। डोंट गेट कंफ्यूज विद एग्जेम्प्ट इनकम्स एंड डिडक्शंस। एग्जेम्प्ट मतलब इनकम के ऊपर आपको छूट दिया जा रहा है, डिडक्शंस मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से या फिर कुछ आउटफ्लोज की वजह से आपको टैक्स कम करना पड़ रहा है, सो दैट इज डिडक्शन। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एग्जेम्प्ट एंड डिडक्शंस। सो डिडक्ट करो क्लेम्स फॉर डिडक्शन, उसके बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी नोन एज योर कंप्यूट नेट टैक्सेबल इनकम, यानी जीटीआई माइनस डिडक्शंस विल गिव यू नेट टैक्सेबल इनकम। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मतलब आपको जो सिलेबस है, ये सिलेबस और एक बार सिलेबस का रिवीजन टाइप हो जाएगा आपको। तो यही आपको प्रोसेस सॉल्व करना है। क्या करना है, टोटली आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्कोप क्या है, मैं रेसिडेंट कहाँ का हूँ, ईयर क्या है, प्लेस क्या है, मुझे पहले ही आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मुझे इनकम को निकालना है, मैं पूरा इनकम उठा के रखूंगा मेरे सामने। फिर उसके बाद मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा कि डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में। फिर वो हेड्स ऑफ इनकम सॉर्ट आउट करने के बाद हेड्स ऑफ इनकम के अंदर में सॉल्व करेगा कि किसको टैक्सेबल करना है, किसको मुझे एग्जेम्प्ट करना है। ये सॉर्ट किया, फिर सॉर्ट करके सॉल्व करने के बाद जो मैं टोटल करेगा उस टोटल को मैं बोलूंगा ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि उसमें से इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम निकल चुका है, तो जो टोटल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज माय ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसमें से मैं क्या कर देगा, डिडक्शंस माइनस कर देगा। डिडक्शंस डिडक्ट होने के बाद जो मेरे पास इनकम बचेगा दैट विल बी नोन एज माय नेट टैक्सेबल इनकम। So this is how you calculate the income under the Income Tax Act. So calculation simple है, steps very simple है। तो समझना इतना ही आपको कि अगर सेक्शन 4 as per चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स और द मेथड टू चार्ज द इनकम टैक्स, यही हमने यहाँ पे देखा है। तो अगर मैं कंपाइलेशन में बात करेंगे, इट इज वेरी सिंपल। यू हैव टू classify your income, you have to identify your income, you have to sort the income, you have to identify the exempt income, you have to deduct the exempt income, now you get an income known as gross total income, फिर उसमें से डिडक्शंस माइनस करो, नेट टैक्सेबल इनकम मिलता है या फिर नेट टोटल इनकम आपको मिलता है। टैक्स का कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स, द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, ये आपका सिलेबस में अंदर आता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेट करना है। टैक्स का कैलकुलेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हमने अभी तक सिर्फ टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट किया। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल मेरे पास समझ लो 1 लाख रुपया था। तो 1 लाख रुपया था, उसमें से मुझे बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल जो इनकम कमाया उसमें से 3,000 के ऊपर मुझे टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, तो एग्जेम्प्ट इनकम निकल गया। तो 1 लाख में से 3,000 निकला, बचा कितना, 97,000। तो 97,000 दैट बिकम्स माय ग्रॉस टोटल इनकम। वो 97,000 में मैंने कुछ अमाउंट मैंने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हैबिट है। तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मुझे बोला गया ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया, 5,000 इन्वेस्टमेंट किया। तो 97,000 में से 5,000 चलेगा, बचा कितना, 92,000। तो 92,000 जो है वही तक आपको कैलकुलेशन करना है। 92,000 के ऊपर कितना टैक्स लगेगा ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज योर नेट टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम। So this entire 4 lectures, first, second, third, fourth lecture अगर तो आपको कंपाइल करेगा, so this is your first chapter. So फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 4 लेक्चर्स के थ्रू आपको इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन मिला है, इनकम टैक्स एक्ट का इंट्रोडक्शन मिला है, डेफिनेशंस मिला है, और यहाँ पे अभी आपको चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्सेशन भी मिला है। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स, होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। आगे का जो भी लेक्चर्स रहेगा वी विल नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।